Hello friends, good morning. Welcome to my amazing सा प्यारा सा channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So guys, today's our topic is LC oscillations. तो LC oscillations के लिए first of all I am going to draw diagram of LC oscillation. So we have one inductor as L and this is our capacitor. So capacitor as C and one inductor as L. So this is our inductor now. It is L. Okay. Capacitors, this plate is positively charged and this place is negatively charged. So initially capacitor is not charged here. So whenever capacitor is not charged, there is no current flowing through this circuit. But if somehow I stored full charge in this capacitor, the current starts flowing through the circuit. So first of all, कैपेसिटर का जो चार्ज है वो चार्ज that is q is equal to qm and it is depend on cos omega 0 t plus 5. Now question is why cos function is here? Because cos is the function where the value starting from the maximum. So यहाँ पर भी कैपेसिटर हमने फुल्ली चार्ज किया है स्टार्टिंग से, so इसीलिए यहाँ पे कॉस फंक्शन आएगा. ओके, सो व्हेनेवर दिस वी हैव QM मतलब कि मैक्सिमम चार्ज, देन 5 विल बी 0 एट दैट टाइम and obviously we are taking t is equal to also 0 because this is initial time. So we get q is equal to qm from the maximum charge. So it is, since t is equal to 0 we have maximum charge. Okay, now from this formula, now we have this formula q is equal to qm as cos omega 0 t. Okay, now differentiating this equation, what we get? We get I is equal to minus dq by dt. First of all, so I is nothing but differentiation of charge with respect to time, but here I put negative sign here. This sign indicates that as current is flowing through this circuit, charge from this capacitor is decreasing, it is reducing. So charge is reducing here. Okay, no problem. Is equal to minus d by dt of qm cos omega 0 t. Now differentiation of this formula, I is equal to minus qm, cos का हो जाएगा minus sin omega 0 t into this brackets differentiation, that is omega 0. Minus minus will be cancelled out, so we get qm omega 0 sin omega 0 t. So this is our current I. Okay, so from this formula I can also write Im sin omega 0 t. So by comparing these two formulas, I have Im is equal to Qm omega 0. So this is my maximum currents formula. Okay, now let us start from this circuit. कि जब स्टार्टिंग से ही अगर हम सर्किट की बात करें तो स्टार्टिंग में कैपेसिटर के पास फुल चार्ज था, तो उस चार्ज को हमने स्टोर करके फिर अब कैपेसिटर में से करंट फ्लो हो रहा है, तो फिर क्या होगा कि कैपेसिटर के अकॉर्डिंग उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसके अराउंड वी गेट वोल्टेज, एंड हियर ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर वी आल्सो गेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस इंडक्टर. So due to this resistance we have voltages formula. So by applying Kirchhoff's law here, first of all capacitance, यहाँ से यहाँ गया, last terminal is positive, so that's why I have to write Q by C. This is our potential difference between this capacitor plate. फिर आगे जाके यहाँ से यहाँ जाना है, बट यहाँ से पॉजिटिव टू पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टू नेगेटिव, लास्ट टर्मिनल इज अवर नेगेटिव, so that's why I have to write negative sign here. So negative L di by dt is equal to 0, क्योंकि कोई ऐसी सोर्स नहीं है तो लास्ट टर्म विल बी 0. ओके, सो हियर di by dt is nothing but यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि q by c minus L d2q by dt2. You can also write
this formula here. Now divide this whole formula with L. What will happen? L यहाँ से चला जाएगा, कहाँ जाएगा? L यहाँ पर आ जाएगा. क्लियर? अब पूरी इक्वेशन को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो वी गेट d2q अपॉन dt2 माइनस q अपॉन lc इज इक्वल टू 0. So this is how we get this formula. It is called differential formula of our LC circuit. Okay. So इस फॉर्मूला से हमें क्या याद आएगा? नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमें याद आएगी. नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा जीरो इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC. ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला हुई. और ये जो फॉर्मूला है वो एक ऑसिलेशन डिनोट कर रहा है. जैसे कि हमने एक पहले भी एक इक्वेशन पढ़ी थी कि d2x अपॉन dt2 माइनस m बाई k इज इक्वल टू 0. तब ओमेगा था, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k बाय m. तो ये उसकी फॉर्मूला थी. कब की फॉर्मूला है? स्प्रिंग जब ऑसिलेट करती है तब की ये फॉर्मूला है. तो स्प्रिंग के ऑसिलेशन की ये फॉर्मूला हुई. तो यहाँ पर भी सर्किट में ऑसिलेशंस हो रहे हैं. कैसे वो हम समझते हैं. यहाँ पर तो सिर्फ मैकेनिकल वर्क दिखाने के लिए ये मैंने दो फॉर्मूला लिखी थी. बट यहाँ पर अगर ऑसिलेशन को अगर समझना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैंने कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज किया. जैसे ही वो फुल चार्ज हो गया सर्किट में से करंट फ्लो होना स्टार्ट कर दिया. अब वो जो करंट है वो जाकर के इंडक्टर में से पास हो रहा है. तो इंडक्टर भी धीरे धीरे फुल्ली चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा. जब इंडक्टर चार्ज हो रहा है तब कैपेसिटर अपनी जो चार्ज है वो रिड्यूस कर देगा. तो उसका चार्ज का लॉस हो जाएगा. तो वो एनर्जी किसको मिली? एल को. तो मैं बारी बारी केस से अगर यहाँ पर डिफरेंट केसेस को यहाँ पर लिखूं तो हमें पता चलेगा. जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था तब उसकी एनर्जी की फॉर्मूला. सो वी नो दैट कैपेसिटर इज ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. वी नो दैट जब कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा सो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. सो दिस एनर्जी इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट्स व्हाई आई हैव टू राइट यूई. सो यूई और कैपेसिटर का फुल चार्ज दैट इज QM स्क्वायर बाय 2C m. So QM is called maximum charge of our capacitor. तब इंडक्टर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था. यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना पड़ेगा क्योंकि करंट जब कभी भी इंडक्टर में से फ्लो होता है तो मैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. सो उसके अकॉर्डिंग अभी 0 है क्योंकि कोई करंट इंडक्टर में से फ्लो नहीं हो रहा है. फिर क्या हो रहा है? तो सेकंड केस में आफ्टर सम टाइम कैपेसिटर का थोड़ा चार्ज रिड्यूस होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ से करंट बन के वो इंडक्टर में से जा रहा है. सो नाउ आवर वैल्यूज इज नॉन जीरो. UM इज ऑल्सो नॉन जीरो. बट आफ्टर सम टाइम क्या हो रहा है कि ये जो चार्ज है वो उसका चार्ज रिड्यूस हो रहा है इन द इफेक्ट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर. सो नाउ वी गेट पूरा रिड्यूस होने के बाद हमारा कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो 0 हो जाएगी. तो उसके सामने इंडक्टर की जो एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाएगी. एंड दैट मैक्सिमम फॉर्मूला आई कैन राइट हाफ ली स्क्वायर. तब मैक्सिमम करंट मिलेगा. दिस इज अवर थर्ड केस. अब एट दिस टाइम इंडक्टर के पास कंप्लीट मैक्सिमम एनर्जी है तो तब ये 0 हो गया. अब धीरे धीरे यहाँ से करंट फ्लो होके वापस कैपेसिटर चार्ज स्टोर करना शुरू कर दे रहा है. तो अगर चार्ज कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हो रहा है तो हमारा जो फोर्थ केस है उस पर अब कुछ एनर्जी यहाँ पर मिलेगी क्योंकि थोड़े चार्ज स्टोर हो गए और यहाँ पर भी थोड़ी एनर्जी है. सो वी गेट नाउ ऑल्सो UE इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 एंड UM इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि दोनों के पास इस केस पे दोनों के पास थोड़ी थोड़ी एनर्जीज है. फिफ्थ केस में चलते हैं. तो फिफ्थ केस में अब क्या हो रहा है? कैपेसिटर चार्ज होना शुरू कर दिया है. वो अब मैक्सिमम चार्ज होगा. यहाँ पर एनर्जी कम होगी और यहाँ पर एनर्जी अब हो जाएगी 0. तो कैपेसिटर अब फुल्ली चार्ज हो गया.
फिर से हमारा जो फर्स्ट केस था वो रिपीट होगा, यू इज इक्वल टू क्यू एम स्क्वायर बाय 2c एंड यू एम इज इक्वल टू 0। तो हमने एक कंप्लीट ऑसिलेशन करवाया इन दिस होल सर्किट। तो पहले ये चार्ज था, फिर धीरे धीरे उसकी एनर्जी रिड्यूस हो गई, फिर एक टाइम पे वो ज़ीरो हो गया, फिर वापस से उसकी एनर्जी बढ़ गई और एक टाइम पे फिर वो वापस मैक्सिमम हो गया। सिमिलर हैपन्स इन दिस मैग्नेटिक एनर्जी, पहले वो ज़ीरो थी, धीरे धीरे उसकी एनर्जी इंक्रीज होना स्टार्ट की, फिर वो मैक्सिमम हुई, वापस वो कम हो गई और यहाँ पर वो ज़ीरो हो गई। सो यहाँ पर पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। जैसे कि एक स्प्रिंग होती है, अगर हम उसको खींचेंगे एक रिजिड वॉल से तो क्या होगा, उसको हम छोड़ दिया तो वो वापस आएगी, फिर वापस यहाँ पर पहुँचेगी। तो ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन मैंने समझाया है कि अगर हम लोग यहाँ पर खींच रहे हैं तो वो कंप्रेस होके फिर वापस आ गई, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। वैसे ही यहाँ पर भी एनर्जी का एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया है। So this is how energy works in SLC oscillations. So आज के लिए इतना ही, that's our topic. So that's it for today guys. Thank you so much for listening my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel. हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट कवर आउट करना रह गया है। तो उस कॉन्सेप्ट में एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर ऑसिलेशंस तो हो रहे हैं, तो क्वेश्चन इज ऑसिलेशन कब रुकेंगे। तो ऑसिलेशन कब रुकने वाले हैं, जैसे कि मैंने पहले भी समझाया कि कैपेसिटर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टर का भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है। सो दोनों के रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पर एनर्जी का लॉस होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस होगा तो एनर्जी लॉस भी होगी। सो उन रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पर एनर्जी के डैम्पिंग्स होंगे। सो धीरे धीरे ये जो प्रोसेस हो रही है, धीरे धीरे जो ये ऑसिलेशंस हो रहे हैं, उससे वो एनर्जी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। सपोज कि यहाँ पर फर्स्ट एनर्जी ये हमें मिली, आफ्टर वन ऑसिलेशन ये जो मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी वो पहले से थोड़ी कम होगी। और दूसरा रीज़न कि अगर ये कैपेसिटर और इंडक्टेंस के रेजिस्टेंस कुछ है ही नहीं, हमने इतने इफ़ेक्टिव कंपोनेंट्स ये लिए हैं, ये दोनों इंडक्टर और कैपेसिटर, कि उसमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, फिर भी यहाँ पर डैम्पिंग होगा। ड्यू टू कैपेसिटर क्या काम कर रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज शीट है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज शीट है। तो ड्यू टू पॉजिटिव और नेगेटिव वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होगी, वो बाहर प्रोड्यूस होगी। तो उसको प्रोड्यूस होने से हम लोग नहीं रोक पाएंगे। तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसका लॉस कैसे होगा, तो ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस कैपेसिटर्स चार्ज। सो वो लॉस हम लोग रोकने वाले नहीं हैं, वो हम लोग रोक नहीं सकते। तो तब भी उसका लॉस होगा और धीरे धीरे एनर्जी फिर कम होती चली जाएगी और बाद में दोनों की एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। सो ये था हमारा बाकी का जो कॉन्सेप्ट था वो। सो थैंक यू गाइज़।